اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو الحمدللہ ہم آیت نمبر 4 سورۃ بقرہ کا اللہ کی رحمت سے ترجمہ کر رہے ہیں۔ تو پہلے ہم نے اس کے دو حصے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، آج ہم اس کے تیسرے حصے کی طرف چلیں گے کہ وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ اس کے بیچ میں اگر آپ دیکھیں تیسرے حصے کے بیچ میں تو بالآخرۃ کا لفظ جو ہے یہ پہلے آیا ہے اور ہم یوقنون کا بعد میں آ رہا ہے، یعنی آیت مبارکہ کا سورۃ بقرہ کی چوتھی آیت کا حصہ جو آخری حصہ ہے یہ مفعولی حالت میں ہے، یعنی مفعول پہلے آ رہا ہے اور ہم یوقنون فاعل اور فعل اس سے آگے جا رہے ہیں۔ تو یوں جب ہم کسی چیز کو بہت زور دے کر بیان کرنا چاہتے ہیں تو اس چیز میں جو زوردار چیز ہوتی ہے، مفعول جو ہوتا ہے، اس کو ہم پہلے لے آتے ہیں، تو یوں ہم زور دے کر ایک چیز کا بیان کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہی معاملہ ہے، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت کے اوپر ان کا یقین ہے۔ آخرت کیا ہے؟ ہماری عام زبان کے بیچ میں آخرت ہم کہتے ہیں کہ سب نے مر جانا ہے، تمام چیزیں تباہ ہو جانی ہیں، تو بس ادھر آگے جا کر ہمارا خیالی ہو جاتا ہے، یہ خیالی چیز ہم سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ آخرت دراصل دوسرے کا نام ہے، آخر دوسرا، اخر دوسرا، دوسری زندگی، اس کا مطلب ہے دوسری زندگی۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، کہ وہ لوگ دوسری زندگی ان کی یقینی چیز ہے، ان کو دوسری زندگی کا مکمل یقین ہے کہ یہ دوسری زندگی آنے والی ہے، اس کے بعد یہ جو زندگی چل رہی ہے اس کے بعد جو دوسری زندگی آئے گی اس کو ہم آخرت کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ میں نے پہلے کر دیا تھا کہ ہم نے قانونی پوائنٹ یاد رکھنے ہیں کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، دو چیزیں پہلے بیان ہوئی ہیں ایمان کے لیے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کتاب ہم نے آپ پر نازل کی ہے، جو لوگ اس پر یقین رکھتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں، اور وہ جو لوگ آپ کے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی تھی ان پر یقین رکھتے ہیں، ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور تیسری چیز یہاں یہ بیان ہو گئی، اور اس کا قانونی پوائنٹ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر آپ کے بعد کوئی چیز آنے والی ہے تو وہ دوسری زندگی آنے والی ہے، اس کے بعد نزول کسی چیز کا نہیں ہوگا۔ یوں ہمیں پتہ چل گیا کہ اس آخرت کے معاملے میں آخرت کا بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ جو قرآن آپ پر نازل ہو چکا اور جو آپ سے پہلے کتابیں نازل ہو چکی ہیں وہی نازل ہوگی، اس کے بعد تیسری چیز جو آنے والی ہے وہ کائنات میں یہ زندگی کا معاملہ ختم ہو کر دوسری زندگی آئے گی۔ یوں ختم نبوت اور قرآن کے آخری اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ہونے کا پوری طرح واضح ہو گیا۔ یوں میری درخواست ہے ان بھائیوں سے کہ جن کو لوگوں نے چکر دے کر اور ان کو ویسے فضول باتوں میں قرآن کی ایسے ہی آیتیں پڑھ کر اور قرآن پڑھ کر اور ایسے جھوٹ موٹ بول کر ان کو مرزئی یا قادیانی بنا دیا ہے اور ان کے ختم نبوت سے ان کو ان کے دماغ کو پھیر دیا ہے، تو یہ قرآن کی آیت کو خود پڑھیں اور خود اس کا فیصلہ کریں کہ اس کے بعد اگر کوئی چیز قرآن یا کوئی نبی آنا ہوتا یا کوئی اور کتاب آنی ہوتی تو اس کا ضرور ذکر ہوتا۔ یہ تیسری چیز ہے وہ بالآخرۃ ہم یوقنون ہے کہ اس کے بعد اگر قرآن کے بعد کوئی چیز تیسرا وقت آ رہا ہے تو وہ ہے دوسری زندگی، آخرت کی زندگی۔ تو اس لیے دوستو آخرت کی زندگی کے لیے ابھی ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ قرآن کے بعد ابھی آخرت کی زندگی آئے گی اور تمام کتابوں اور قرآن کی جتنی تعلیمات ہیں اس میں نافذ کر دی جائیں گی۔ اب آخرت کی اہمیت، آخرت کی زندگی کا جو ہے اس کو مقدم یعنی اس کو زیادہ چاہنا، دنیا یہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں اس زندگی کو اور اس زندگی کو ملا کر چلانا کہ اس زندگی کے ذریعے ہم نے پوری کوشش کرنی ہے کہ ہماری دوسری زندگی ہے وہ بہترین زندگی آئے۔ اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا
تو وہ بہت بڑا نقصان اٹھائے گا، کیونکہ یہ زندگی جو ہے یہ زندگی بہت تھوڑی زندگی ہے اور آزمائشی زندگی ہے۔ اس کے ذریعے سے ہمیں صرف آزمائش میں رکھا گیا، اور اس کے بعد دوسری زندگی جو آنے والی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ اس لیے زندگی کو یہاں پر ہی محدود نہ کر دیں کہ بس مر جانا، کچھ نہیں لے کر جانا، تباہ ہو جائیں گے، کیا تو دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے، یہ تو دنیا ختم ہونے والی، تو نے کیا لے کے جانا ہے۔ پھر ایسی شعر و شاعریاں کرنا، جب سکندر چلا دنیا سے تو دونوں ہاتھ تھے خالی، اور سما ہے 100 برس کا اور پل کی خبر نہیں، ایسے شعر پڑھ کر لوگوں کو گمراہ کرنا آخرت سے بہت بڑی گمراہی ہے۔ آپ قرآن کی طرف آئیں، چھوڑ دیں ان چیزوں کو کہ سکندر چلا دنیا سے دونوں ہاتھ تھے خالی، آپ کے کسی کا ہاتھ خالی نہیں ہوگا، سب کو ہاتھوں میں لے کر جانا ہے۔ ابھی قرآن آگے پڑھتے جائیں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ خالی ہاتھ ہم نے نہیں جانا ہے، سب کچھ ہی ساتھ جانا ہے۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا ہے کہ وہ لوگ، ان کو یقین نہیں ہے کہ اگلی زندگی آنے والی ہے، اور اگلی زندگی ان کے لیے یقینی زندگی ہے، اور ان کو پتا ہے کہ یہ ایسی یقینی زندگی ہے کبھی نہیں ختم ہونے والی۔ تو ان کو آنے والی زندگی کے لیے وہ اس دنیا کے ذریعے جو کچھ بھی احکامات اللہ نے قرآن میں نازل کیے ہیں، اور ان احکامات کے اوپر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کر کے ہمیں دکھا دیا ہے، عمل کر کے ہمیں دکھا دیا ہے۔ تو ان احکامات کو سمجھنا اور پھر احکامات کو طریقہ سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، یہ جو ہے یہ اگلی زندگی کی تیاری ہے۔ پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ اپنی سوچ اور اپنے ذہن میں پکا رکھیں کہ اگلی زندگی جو ہے وہ پہلی زندگی کے اوپر اگلی زندگی کو ہمیشہ ترجیح دیں۔ جو لوگ اگلی زندگی کو کچھ نہیں سمجھتے، ان کے لیے دنیا میں آخرت کو جو کچھ نہیں سمجھتے، جو آخرت کی زندگی کو ترجیح نہیں دیتے، تو ان کے لیے دنیا کے بیچ میں پہلا عذاب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنہوں نے دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا اور آخرت کی زندگی کو کچھ نہیں سمجھا، اس کی کوئی قیمت نہ جانی، بس کو خیالی زندگی سمجھا، تو ان کے اوپر پہلا اللہ کا عذاب یہ آتا ہے کہ وہ لوگ قرآن سے دور کر دیے جاتے ہیں، وہ قرآن کو نہیں پڑھ سکتے، جب ان کو اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے کی ہمت ہی نہیں دیتا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قرآن کی تلاوت پڑھ کر لوگوں کو حکم سناتے تھے، تو وہ لوگ جو تھے، وہ لوگ اپنی اس جو اگلی زندگی کو کچھ نہیں جانتے تھے، تو وہ قرآن کو نہیں سنتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر بہت پریشان ہوتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ اسراء آیت نمبر 45 میں فرمایا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اور جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو لوگ اگلی زندگی کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، جن کا ایمان نہیں، ہم ایک چھپا ہوا پردہ ڈال دیتے ہیں، یوں وہ قرآن کو نہیں سن سکتے۔ تو دوستو آج ہم دیکھنا ہے کہ ہم کتنے لوگ قرآن کو پڑھ رہے ہیں جو لوگ قرآن کو نہیں سن سکتے۔ وقت نہیں ہے جناب قرآن سننے کا، بہت کام ہے، کون 10 منٹ نکالے کہ قرآن کو پڑھے اور اس کو سنے اور اس کو سمجھے؟ تو یہ وہ نہیں، بلکہ اللہ اس کو قریب نہیں آنے دے رہا کہ دفعہ جا کون ہے تو قرآن کو سننے والا، تو نے تو قرآن کی جو آنے والی زندگی اللہ کے قانون ہی کو مٹا ڈالا، تیرے ذہن میں نہیں ہے۔ تمہیں جو اللہ نے یہ زندگی دی، تو اس کو بھی بھول گیا کہ اللہ نے تمہیں دیا۔ اگر تجھے پتا ہوتا کہ یہ زندگی اللہ نے دی ہے، تو اسی اللہ نے فرمایا بالآخرۃ هم یوقنون، کہ تیری دوسری یقینی زندگی آنے والی ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی، تو تیرا اس پر بھی ایمان ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو قرآن کے نزدیک نہیں آنے دیتا۔ یہ نہیں کہ یہ قرآن نہیں پڑھ رہا اور اللہ کا بڑا نقصان کر رہا ہے، نہیں، یہ اپنی بربادی خود کر رہا ہے، اللہ اس کو قرآن کے نزدیک نہیں آنے دیتا۔ جیسا کہ اللہ نے فرما دیا وَجَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، کہ تیرے اور اس کے درمیان جب تو قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو تیرے اور اس کے درمیان ہم ایک پردہ ڈال دیتے ہیں جو چھپا ہوا تھا، اس کے کان اور آنکھیں جب بند ہو
जाता है, कुछ भी नहीं सुन सकता। तो यूं दोस्तों, पहली सजा दुनिया में ये है कि जो लोग आखिरत की जिंदगी के ऊपर ईमान नहीं रखते, जो लोग आखिरत की जिंदगी को ख्याली चीज समझते हैं, माँ कहते थे हम मुसलमान हैं लेकिन आखिरत की जिंदगी को ख्याली चीज समझते हैं, उनको अल्लाह कुरान सुनने की तौफीक नहीं देता। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमा दिया है कि लोगों, ये आखिरत की जिंदगी है, ये कोई खत्म हो जाने वाली है, कोई ऐसी चीज नहीं है, बल्कि ये तमाम चीजें हम तुम्हारे सामने खोल कर रख देंगे और तुम हर जमीन और आसमानों की चीजों को देखोगे। जैसा कि कुरान सूरत फुस्सिलात आयत नंबर 53, सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक, हम इनको आफाक के बीच में अपनी सारे हुक्म जो कुरान में हमने लेकर भेजे, जो जो लफ्ज हमने कुरान में लेकर भेजा, इसको असली सूरत में दिखा देंगे। जो कुछ हमने कुरान में फरमा दिया, इसको असली सूरत की आयात में फिल आफाक, आफाक उफक की जमा है। उफक इसके कहते हैं, जैसा कि सूरत नजम के बीच में आता है उफक। उफक सादा सा तर्जुमा, वीडियो लंबी ना हो और मैं आपको सादा सा इसका तर्जुमा बताता हूँ। अगर आप एक खुले मैदान में खड़े हो जाए, खुले मैदान में खड़े होकर दूर नजर देखें तो आपको एक जगह ऐसी नजर आई कि आसमान जो है वो प्याला बन रहा है, प्याले की शक्ल तैयार कर रहा है, और यूं लगता है कि जब आप एक जगह के ऊपर जाकर जमीन और आसमान आपस में मिल गए हैं। वहां पर जो आपकी नजर, जिस जगह के बीच में आपको नजर आता है कि आसमान और जमीन मिल गए हैं और दरमियान में कोई रुकावट नहीं आती, उसको उफक कहते हैं। यानी आफाक उसकी जमा है कि जमीन और आसमानों की हर चीज जो कुरान में हमने बयान किया तेरे सामने रख देंगे और तो इनको अपनी आंखों से देखेगा। तो यूं फरमा दिया, सनुरीहिम, हम इनको दिखा देंगे आयातिना फिल आफाक, आफाक के बीच में अपनी एक एक चीज इनको दिखा देंगे जो हमने कुरान के बीच में बयान की है। वफी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यना लहुम, तो फिर ये अपने आप में खुद महसूस करेंगे। वो लोग जो इनको नहीं जानते, कुरान की आयतों पे ईमान नहीं ला रहे, कुरान को ख्याली समझ रहे हैं, वो अपने आप को जरूर महसूस करेंगे अन्नहुल हक को, कि ये बिल्कुल सच था, कुरान का एक एक हरफ सच था। अवलम यकफी बिरब्बिका अन्नहु अला कुल्लि शैइन शहीद, और ए नबी आप परेशान ना हो कि ये लोग कुरान को कुछ नहीं जानते, क्या आप ये जान लें, आपके दिल को ये पता होना चाहिए, आप परेशान ना हो, क्या आपके लिए ये काफी नहीं कि तेरा रब जो है हर चीज उसके सामने पड़ी हुई है, तेरा रब हर चीज को देख रहा है, आप परेशान ना हो। तो यूं दोस्तों, अल्लाह ताला ने ये वादे कर दिया है कि हम कुरान को जो है, कुरान की तमाम जो आयात हैं, जो इसमें आयात से मुराद जो जो हमने इसमें हुक्म और चीजें बयान किया, हर चीज इनके सामने रख दे कि ये देखो, ये कुरान में हमने तुम्हें जन्नत कहा था, दोज़ख कहा था, हमने तुम्हें आखिरत का ये कहा था, अदालत लगेगी, अल्लाह आएंगे, ये है वो, सारी चीजें अल्लाह इनको सामने दिखा देगा और कोई चीज इनसे छुपी नहीं रहेगी। जो आसमानों के ऊपर मखलूक है, जो नीचे मखलूक है, फरिश्ते, हर चीज इनको सामने रख के दिखा देंगे। तो फिर अल्लाह ताला ने फरमा दिया क्या नबी आप परेशान ना हो, तो आपके लिए ये काफी, आप अपने दिल में ये समझ लें कि तेरे रब को हर चीज का पता है, आप परेशान ना हो। परेशान तो तब आप होंगे, ये तो मानते नहीं और अल्लाह को पता नहीं है, तब परेशानी, अल्लाह को हर चीज का पता है। और दूसरी बात यह है कि आपने पहले भी मैंने गैब का बीच में जो आयत नंबर 3 के बीच में मैंने कहा था कि गैब के बीच में हमें अल्लाह पर यह ईमान रखना है कि हम यकीन करते हैं कि अल्लाह, हर चीज अल्लाह की है और अल्लाह ही अल्लाह, सब कुछ अल्लाह ही अल्लाह, सिर्फ हमारी मुलाकात नहीं उनसे हुई है। तो ये यहाँ रब्बिल आलमीन ने वाज़ेह फरमा दिया, अला अन्नहुम फी मिरियतिन मिन लिकाए रब्बिहिम, दरअसल ये लोग अपने रब से मुलाकात के मुतल्लिक शक में हैं। मिरियत में शक में होना, खबरदार ये लोग जो के अल्लाह से जो मुलाकात होने वाली है आखिरत के दिन में, उसके बारे में शक में पड़े हैं। अला इन्नहुम फी मिरियतिन मिन लिकाए रब्बिहिम अला इन्नहु बिकुल्लि शैइन मुहीत, तो बेशक तेरा रब जो है हर चीज उसके सामने और उसके हाथे में है, उसके कब्जे में है, कोई चीज उसके हुक्म से इधर उधर नहीं हो सकती। तो यूं फरमा दिया कि ये लोग जो हैं, ये अभी जो कुरान से दूर हैं, ये अपने रब के मुतल्लिक बहुत से शक में पड़े हुए हैं। और यार लोगों, तुम दिल को अपने दिल से शक को निकाल दो और याद रखो
کہ جو काफिर लोग, कुछ लोग कहते हैं हाँ जी जब मर जाएंगे मिट्टी हो जाएंगे तो फिर कैसे उठना, जैसा कि डॉक्टर जाकिर नायक की तो माशाल्लाह क्या महफिल है उसमें, तो सवाल ही इतना इतना बड़ा हो रहा है कि पता नहीं अल्लाह है ही कुछ नहीं है, वो लोग तो जो जुबान पे आता है वो कह रहे हैं। तो कुछ लोग कह देते हैं जब मर गए मिट्टी हो गए तो फिर क्या होगा। तो अभी आप देखें अल्लाह ताला ने यहाँ वाज़ेह तौर पर फरमा दिया, ऐ नबी इनको बता दो, या नबी इनको बता दो कि तुम्हारा हिसाब जरूर होगा, तुम कुछ भी हो जाओ। कुल आयत नंबर 50 और 51 के बीच में आप पढ़े, सूरत असरा ही की आयत नंबर 50 और 51 के बीच में पढ़े, कुल कूनू हिजारतन औ हदीदा, तुम मर कर या पत्थर हो जाओ, लोहा हो जाओ, जो कुछ मर्जी है बन जाओ। और खल्कन मिम्मा यकबर फी सुदूरिकुम कि जो इससे भी, जो लोहे पत्थर और इनसे भी कोई सख्त चीज है जो तुम्हारे ज़हन के मुताबिक है, तुम्हें पता होगा पैदा की हुई कोई ऐसी चीज है जो लोहे और इनसे सख्त है, वो भी हो जाओ, तो तब भी हमने तुम्हें इस जमीन के ऊपर खड़ा करना है हिसाब के लिए, तुम्हें इंसान बनाकर, जिस तरह का तुम पहला इंसान को उस तरह तुम्हें बनाकर हमने खड़ा करना, तो इसे हिसाब लेना ही लेना है। इसलिए अल्लाह ने वाज़ेह फरमा दिया कि तुम कोई सोच मत रखो, तुम्हें आखिर दूसरी जिंदगी में आना ही आना है, इससे तुम बच नहीं सकते हो। तो दोस्तों इसलिए हमें अल्लाह ताला हर चीज सबको ही समझा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला अपने बंदों को फिर प्यार से समझाते हैं, बल तू से रूना, लेकिन फिर भी तुम नहीं समझते हो, तुम तू से रूना असर करते हो, तुम लोग तरजीह देते हो, बल तू से रूनल हयात दुनिया, कि तुम दुनिया की जिंदगी को, वल आखिर, जो दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो, जबकि अल्लाह तुम्हें ये फरमा रहा है वल आखिरात खैरुन व अबका, कि आखिरत की जिंदगी जो है वो बाकी रहने वाली और बेहतरीन जिंदगी वो है, बेहतर जिंदगी है इसकी बनस्बत। तो इस जिंदगी के जरिए उस जिंदगी को हासिल करो, वल आखिरात खैरुन व अबका, ये सूरत आला और आयत नंबर 16 और 17 है। इन हाजा लफी सोहफिल उला, ये हमने तमाम पहली किताबों में भी ये चीजें बयान कर दी हैं। जो लोग कहते हैं कि पहली किताबें मनसूख हो गई हैं, अब वो क्या, यहाँ ये आयत अभी नहीं पढ़नी चाहिए, मनसूख हो गई हैं पहली किताबें, ये सूरत आला के बीच में आयत नंबर 18 पढ़ ले, इन हाजा लफी सोहफिल उला, ये पहली किताबों, सोहफिल उला पहली जितनी भी किताबें उन सामने ये कानून हमने बयान किया है, उनके बीच में हमने ये कानून बयान किया है। सोहफ इब्राहिम व मूसा, और सोहफ इब्राहिम और सोहफ मूसा के बीच में भी बयान है, तो कुरान का यहाँ नाम नहीं है, तो कुरान खुद बयान कर रहा है। लिहाजा पहली किताबें और आखिरी किताब, इन सब के बीच में तमाम कवानीन एक जैसे और आखिरत के मुतल्लक यूँ फरमा दिया अल्लाह ताला ने कि लाफी सोहफिल ओला, सोहफ इब्राहिम व मूसा, कि सोहफ इब्राहिम और सोहफ मूसा अलैहिस्सलाम की जो किताबें थी उनके बीच में हमने ये सब कुछ बता दिया था। और आगे मुख्तसर सा हाल है क़यामत का कि उस दिन इस जमीन के मुतल्लक क्या हुक्म है, उस दिन इस जमीन के मतलब क्या हुक्म है। सूरत फजर आयत नंबर 21 में अगर आप पढ़ें तो वहां पर अल्लाह ताला ने बड़े वाज़ेह तौर पर ये इरशाद फरमा दिया, कल्ला हरगिज ऐसा नहीं होगा, कल्ला हरगिज ऐसा नहीं होगा, ये कहा कि ये रुक जाए दूसरी जिंदगी, ऐसे सोच में निकाल दो कि कल्ला हरगिज ऐसा नहीं कि दूसरी जिंदगी नहीं आएगी, वो आए कल्ला का लफ्ज़ इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्कन, कि जब हम जमीन को पीस कर पाउडर बना देंगे, दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्कन, के ये जमीन के ऊपर जितनी चीजें हैं, पहाड़ मकान जो चीज है जमीन के ऊपर, इसको पीस कर हम दक्कन दक्कन दक दक दुक्कत दक्कन दक्कन, के हम इसको पीस कर इसका पाउडर बना देंगे। जा रब्बो का, फिर उस दिन तेरा परवरदिगार आएगा, फिर उस दिन तेरा परवरदिगार आएगा, वजा रब्बो का वल मालिक वल मलको, और फरिश्ते आएंगे, वल मलको, और फरिश्ते आएंगे, सफ़न सफ़न, और फरिश्ते रब्बिल आलमीन के साथ बड़े अदब से कतारें बनाए हुए, सफ़े बनाए हुए कतारों की शक्ल में रब्बिल आलमीन के साथ आएंगे। तो तेरा रब फरिश्तों की सफ़ों के बीच में आएगा, तेरा रब आएगा और उनके साथ फरिश्ते बड़े अदब के सफ़े बनाए हुए आएंगे। जब तेरा रब यहाँ पर ये याद रखें कि यहाँ पर रब्बों का, रब्बिल आलमीन ने
अपनी निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ की है। वजाअ रब्बुका, क्या नबी तेरा रब आएगा और उनके साथ फरिश्ते आएंगे जो कि बड़े अदब से सफ़े बनाए हुए आएंगे। यहाँ पर भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने का सबूत मिल गया कि आप आखिरी नबी हैं, आपके बाद सिर्फ क़यामत आएगी। तो इसलिए आपको मुखातब करके अल्लाह ने फरमा दिया है, अल्लाह ताला ने फरमा दिया है वजाअ रब्बुका का तेरा रब आएगा। इसी तरह अगर हम सूरत रहमान में पढ़ें तो वहाँ पर भी अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ अपने आप को मंसूब किया है। तो यूं उससे भी आज से भी साबित हो जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। इसलिए मेरे जितने भाई इस वक्त पाकिस्तान में मरज़ई कादियानी होकर जिनको बेचारों को गुमराह करके जहन्नम की तरफ ले जाया जा रहा है, ये चीज़ कुरान को खूब पढ़े और कुरान का बहाना देकर, मुझे दुख इस बात का लगता है कि कुरान का बहाना देकर गुमराह किया जाता है। तो आप पढ़ लें सूरत रहमान के बीच में भी कि अल्लाह ताला ने वहां भी इरशाद फरमाया कुल्लु मन अलैहा फ़ान, कुल्लु मन अलैहा फ़ान, जो कुछ इस जमीन में हम सबको फना कर देंगे। वहां भी अल्लाह ताला ने अपनी निस्बत अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मिलाकर फरमाया ऐ नबी तेरे रब ही का हुक्म बाकी रहेगा। तो वहां पर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके फरमा दिया कि इसके बाद ऐ नबी अगर तेरे बाद कोई चीज आने वाली तो आखिरत है। तो यूं अल्लाह ताला आएंगे वजी यौमइज़िन बिजहन्नम यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसानु व अन्ना लहु ज़िक्रा। तो उस दिन जहन्नम, जो मुजरम लोग हैं, जो काफिर हैं, उनके सामने कैद खाना और तमाम उनकी जो कुछ उन्होंने करतूतें की होंगी उनके लिए जितने कैद खाने बड़े उनके सामने जहन्नम लाकर रख दी जाएगी और कहा जाएगा ये है तुम्हारा ठिकाना, ये है तुम्हारा ठिकाना। और अब जहां इंसान, फिर अल्लाह ताला ने फरमाया यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसान, तो जो लोग दुनिया में हिदायत हासिल नहीं करते थे, कुरान से हिदायत हासिल नहीं कर रहे थे, वो उस दिन बड़ी जल्दी नसीहत पकड़ेंगे, उस दिन बड़ी जल्दी नसीहत पकड़ेंगे। वह अन्ना लहु ज़िक्रा, लेकिन आज नसीहत हासिल करना किस काम का? वह अन्ना लहु ज़िक्रा, नसीहत आज किसी काम की है ही नहीं। उस दिन फिर इंसान कहेगा या कूलो या लैतनी कद्दम तो ले हयाती, हाय तोबा, हाय मैं बर्बाद हो गया, काश कि मैंने अपनी जिंदगी के लिए कुछ भेजा होता। तो दोस्तों यहाँ पर ही बात खत्म कर देना, नहीं कि मैं आपको परेशानी में डाल दूं तो आगे हम बयान न करें। कुरान में अल्लाह ताला ने जो नेक लोग हैं इनके लिए एक अलहदा जिंदगी बयान फरमा दी है। दरअसल ये लोग जो हैं ये अल्लाह ताला के, ये रब्बिल आलमीन के जो है ये मेहमान होंगे। जो नेक लोग हैं जो वो आखिरत की जिंदगी में जो नेक लोग हैं ये अल्लाह के मेहमान खुसूसी होंगे। और इनकी जो मेहमान खुसूसी जब आएंगे तो वहां पर जो मेहमान की फिर कदर होगी, फिर अल्लाह का मेहमान जब उनकी कदर फिर क्या होगी, क्या फिर हर चीज उनकी मेहमान नवाज होगी। तो अल्लाह ताला ने उनकी शान यूं बयान की है कि ये जो क़यामत का रोज होगा कितना भारी होगा, बहुत परेशान होंगे। तो लेकिन अल्लाह उस दिन हवा को भी हुक्म नहीं दे देंगे कि हवा तूने भी आवाज नहीं पैदा करनी है, क्योंकि मेरे खसूसी मेहमान मेरी मुलाकात के लिए आ रहे हैं। अंबिया, सूरत अंबिया आयत नंबर 102 में अगर आप पढ़ें तो वहां पर क्या सुभान अल्लाह, नेक लोगों का, जो नेक लोग हैं तो उनको एज ए मेहमान बुलाया जाएगा। तो सूरत अंबिया के बीच में अल्लाह फरमाते हैं ला यस्माउन हसीसा, हसीसा सी सी शू शू की आवाज, हत्ता कि हवा जो है, या जहन्नम तो दूर की बात है, हवा को भी हुक्म दे दिया जाएगा कि आज मेरे मेहमान मेरे साथ मुलाकात के लिए आ रहे हैं, तो आज तूने भी आवाज सी सी की आवाज पैदा नहीं करनी है। ला यस्माउन, मेरे मेहमान नहीं सुनेंगे उस दिन हसीसा सी सी की आवाज ही, वहुम फीमा उश्तहत अनफुसुहुम खालिदूना, और जहां उनका जी चाहेगा कि हम इस महल्लात में रहे, फलानी जगह पे रहे, वो उनको उनके चाहत के मुताबिक दे दी जाएगी, क्योंकि वो मेहमान खसूसी होंगे। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जरा जितना भी उनके ऊपर ये जो क़यामत का दिन है इंसानों को डरा दिया क़यामत का ये, लेकिन जो अल्लाह ताला के मेहमान खसूसी होंगे उनके लिए जरा जितना भी खौफ नहीं होगा, उनको जरा भी खौफ नहीं आएगा। ये देखें अल्लाह ताला आगे फरमा रहे हैं ला यहज़ुनुहुम या ला यहज़ुनुहुम अल-फ़ज़अउ अल-फ़ज़अउल अकबर, उस दिन का जो बड़ी घबराहट है वो उनको कुछ नहीं बोलेगी। उस दिन की जो बड़ी घबराहट है वो उनको कुछ नहीं बोलेगी। जब जैसे ही आखिरत का दिन आएगा वततलक्कहुमुल मलाइका, तो
تو فرشتے उनको लेने आएंगे, उनके साथ मुलाकात करेंगे, उनको लेने आएंगे, उनके साथ गपशप लगाएंगे, उनकी खुशी की गप, यानी कोई फरिश्ते जो बात करेंगे उनके साथ बड़े अदब और बड़े ऐसे प्यार की बातें होंगी कि आज से जिस बात की कोई गम जो परेशानी ना हो। यानी सी की आवाज भी अल्लाह फरमाता है, आवाज तू भी आज शू शू की आवाज नहीं पैदा करनी है जिससे मेरे मेहमानों को परेशानी हो या मेरे मेहमान जिस आवाज को पसंद ना करें। तो वततलक्कहुमुल मलाइका, तो फरिश्ते उनको लेने आएंगे और उनसे कहेंगे हाज़ा यौमुल्लज़ी, ये है वो दिन जिस दिन तुम्हारी मुलाकात होनी थी, उल्लज़ी कुंतुम तुअदून, जिसका तुमसे तुम्हारे रब ने वादा किया था कि आज के दिन मैं सारी नेम तो तुम्हारे हवाले कर दूंगा। तो मेहमान खसूसी कैसे, मैंने कहा वो अपनी जुबान से नहीं कहा। आप सूरत मरियम आयत नंबर 85 में पढ़े, यौम नहशरुल मुत्तकीना, यौम नहशरुल मुत्तकीना इला रहमान वफदा, कि उस दिन हम जो मुत्तकी कौन है, आपने पहली आयत में, दूसरी आयत में, आयत नंबर 2 में पढ़ा था, हुदल लिल मुत्तकीन, जो कुरान से हिदायत हासिल करते हैं फिर उन पे अमल करते हैं, तो इसके इवज में वो मुत्तकी लोग बन जाते हैं। जो कुरान के हिदायत हासिल करके उनके अहकामात पर अमल करते हैं उनको मुत्तकीन कहा जाता है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं यौम नाशरुल मुत्तकीना, उस दिन हम मुत्तकियों को बुलाएंगे, इकट्ठा करेंगे अल्लाह के यहाँ मुलाकात के लिए, वो आएंगे इला रहमान वफदा, तो वो मेहमान खसूसी होंगे वफद के तौर पर। वफद का लफ्ज़ आम पढ़ते हैं कि आज जनाब वज़ीर आज़म से मुलाकात करने के लिए फलाने मुल्क से जो है वफद आया हुआ है। तो यूं जितने मुत्तकी लोग हैं जिन्होंने कुरान पे अमल किया, कुरान के हुक्मों को माना, ये रब्बिल आलमीन के यहाँ वफद बनकर जाएंगे, मेहमान खसूसी बनकर जाएंगे, हर चीज इनकी मेहमान नवाज होगी। और फिर अल्लाह से बढ़कर मेहमान नवाजी करने वाला है भी कौन, खुद ही बता दें। अल्लाह की जब मेहमान होंगे जो लोग, तो हर चीज, जमीन आसमान, दरख्त, जन्नत, नहरें, दरिया, हर कायनात की चीज उनकी मेहमान नवाजी करेगी। अल्लाह ताला मुझे और आपको अपने मेहमानों में शामिल फरमाए और हमें कुरान के अहकामात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।